پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے. اس ٹویٹ کو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور ساتھ ہی انہوں نے ایک میچ فکسنگ کی ہے. تو آئے عمران خان کی میچ فکسنگ سے اور اس کی ٹویٹ کا پوسٹ مارٹم آپ کے ساتھ کرا دیں. آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں رہیں تاکہ آپ کو پوری جانکاری حاصل ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالواجد خان داؤدزئی، خدائی خدمتگار. ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو ہوپ اور امید کے ساتھ حاضر ہوں. پاکستان قوم کی بیداری، اسپیشلی پختون قوم کی بیداری اور وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ممالک میں محنت مزدوری کے سلسلے میں رہائش پذیر ہے، ان کی بیداری کے سلسلے میں حاضر ہوں. سامعین، آئے شروع کرتے ہیں عمران خان کی سیاسی میچ فکسنگ کے بارے میں. انہوں نے ایک میچ فکس کروایا ہے اور وہ کس طرح کروایا ہے آئے آپ کو دکھاتے ہیں. کل بیرسٹر سیف عمران خان کے ساتھ ملاقات کی. یو نو بیٹر ہو از بیرسٹر سیف، وہ کس کا بندہ ہے. اگر آپ ڈاٹ سے ڈاٹ میں لایا جائے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ بیرسٹر سیف کا تحریک انصاف کے ساتھ کتنا واسطہ اور کتنا رابطہ ہے. بیرسٹر سیف مشرف کے وقت میں مشرف کا ترجمان، پھر MQM کے پلیٹ فارم سے سینیٹر بنا اور وہاں سے جب فراغت ملی، یعنی جب وہاں سے گریجویشن کی، تو اس کے بعد تحریک انصاف میں شامل کروایا گیا. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی لوگ تحریک انصاف میں آئے ہوئے ہیں وہ آئے نہیں ہوئے، اس کو شامل کروایا گیا. اور جس نے شامل کروایا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ اس کو خوشی سے وکٹ گرانا کہتے تھے، مگر وہ وکٹ گرانا نہیں تھا. وہ کوئی اس کو گلے سے پکڑ کے یہاں بنی گالا لا کے عمران خان اس کے گلے میں جو پٹا ڈال رہا تھا تو سمجھا کرے کہ کس کے بندے تھے اور کس کے اشارے پہ شامل ہو رہے تھے. تو بیرسٹر سیف نے عمران خان سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے بعد ایک فکسنگ کروائی. یعنی عمران خان نے کہا دو بندے آپ، یعنی جو جس کے نمائندے ہیں ان کے سینیٹر بنے پاکستان تحریک انصاف سے اور دو میرے. تو عمران خان نے اپنی طرف سے مراد سعید، فیصل جاوید اور مشال یوسفزئی کا نام دیا، اور دوسری طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ میرے دوسری طرف سے کہنے کا کیا مطلب ہے. انہوں نے روبینہ ناز، عرفان اور دوسری طرف سے جو نام آئے ہیں ان میں سے مرزا آفریدی، قادری صاحب جو وفاقی وزیر بھی تھا تحریک انصاف کی حکومت کے دوران، اور روبینہ ناز. اب آپ خود اس بیلنس کو دیکھیں کہ 3 ایک طرف سے اور 3 دوسری طرف سے. تو یہ میچ فکسنگ بیرسٹر سیف اور عمران خان کی ملاقات کے وقت ہو گیا. اور پھر عمران خان نے ان کو آرڈر دے دیا کہ آپ سیاسی کمیٹی کا اجلاس بلائے. تو اجلاس کس وقت بلائے؟ رات کے 1 بجے. اناؤنس بیرسٹر سیف نے کب کی؟ رات کے 2-2:30 بجے انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ ہمارے یہ کینڈیڈیٹ ہے. تو اب جو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہے سینٹ کے الیکشن میں، تو ان میں مراد سعید، فیصل جاوید اور مشال یوسفزئی کے ساتھ ساتھ مرزا آفریدی، نور الحق قادری صاحب اور روبینہ ناز. تو یہ تھا ان کا میچ فکسنگ. آپ کو آگے بھی بتاتا چلیں گے کہ یہ مرزا آفریدی صاحب ڈپٹی اسپیکر، آپ کو آگے بتاتا چلیں گے ساتھ ساتھ کہ مرزا آفریدی کون ہے، کیسے پہلے سینیٹر بنا تھا، پھر ڈپٹی اسپیکر کیسے بنا تھا. ساتھ ساتھ ہی جب عمران خان کی ٹویٹ کا پوسٹ مارٹم کریں گے تو اس میں آپ کے ساتھ بتاتا چلیں گے. اچھا، ابھی آتے ہیں عمران خان کی ٹویٹر کے بارے میں. عمران خان صاحب لکھتے ہیں کہ میں تمام عمر بھر جیل میں رہنے کو تیار ہوں، لیکن ظلم اور جبر کے آگے جھکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. پاکستانی قوم کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں کہ کسی صورت جبر کے اس نظام کے سامنے نہ جھکے. مذاکرات کا وقت اب گزر چکا ہے، اب صرف قوم کے احتجاج کا وقت ہے. اچھا، تو عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ظلم اور جبر کے
आगे झुकने को तैयार नहीं हो। आप तो सिर्फ नाकिंग का इंतजार करते हैं। अगर आप झुकने के सवाल पैदा नहीं होता तो फिर ये जो आपके 3 सेनेटर के नाम पर आपने फिक्सिंग कराई, यानी मिर्जा अफरीदी और नूरुल हक कादरी साहब और रुबीना नाज, तो ये आपको किसने मजबूर किया इन नामों पे? आपने खुद कहा था मिर्जा अफरीदी साहब के उसको टिकट नहीं देना है, क्योंकि मिर्जा अफरीदी साहब नून लीग की टिकट पे सेनेटर बना था। फिर जब उस पे मुश्किल वक्त आया तो जिसका बंदा है उन्होंने इशारा किया तो वो सीधा आपके पास आया और फिर आपने उन्हीं के इशारे पे उसको डिप्टी स्पीकर सेनेट बनाया। अच्छा, आगे लिखता है, पिछले कुछ रोज से जेल में मुझ पर सख्तियां मजीद बढ़ा दी गई है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी भी सख्ती का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। इनके सेल में जो टीवी मौजूद था वो भी बंद करा दिया गया है। मेरे और मेरी अहलिया के तमाम इंसानी और कैदियों को दे जाने वाले हुकूक मुअत्तल है, जिसका हिसाब होना चाहिए। ये आप जो आज भुगत रहे हैं ये उसका हिसाब है। जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तो आपने नवाज शरीफ, जरदारी साहब, फरियाल तालपुर और जितने भी सियासी लीडरों को कैद बनाया था तो उनसे आपने यही सहूलियात छीन ली थी। यही आपकी फरमाइश थी जो उस वक़्त के एस्टेब्लिशमेंट यानी जनरल बाजवा और जनरल फैज से आप करवा रहे थे। और आज जो जिसका आप सामना कर रहे हैं इसको मकाफाती अमल कहते हैं। आप और जनरल फैज जिसका सामना कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के वर्कर दुआ करते थे कि अल्लाह जिसने पाकिस्तान को इस नेश पे पहुंचा दिया है उनको तबाह, बर्बाद और जलील करे। तो हम भी साथ कह देते आमीन। वो यही हमारी आमीन और आपकी वर्करों की दुआएं जिसकी बदौलत जनरल फैज और आप आज यहाँ जेल में सड़ रहे और जलील भी हो रहे। मगर अकल वालों के लिए निशानी काफ़ी होता है, मगर आपके और आपके वर्करों की जितनी अकल है वो उनको कभी समझ नहीं आएगी। अच्छा, आगे लिखते हैं, मुझे मालूम है कि कर्नल और जेल सुपरडेंट अंजुम ये सब कुछ आसिम मुनीर के कहने पर कर रहे हैं। तासुब और दिल में कीना तो इतना है कि जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ सांप भी नहीं लगाते हैं। और आपको कर्नल लायकत याद आ रहा है तो इसलिए आपके दिल और दिमाग में यही सब कुछ है कि जो यहाँ पे सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में ये कर्नल के लेवल तक लोग करवा रहे हैं। अपनी पार्टी को वाज़ेह हिदायत करता हूं, अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका हिसाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से। आप न फील्ड मार्शल लगाते न साहब, मगर हम लगाएंगे, क्योंकि हमारा भी इख्तिलाफ हो सकता है मगर अदब के दायरे के अंदर अंदर। जब आप आगे किसी को इज्जत दोगे तो वो भी आपको इज्जत देगा। ये आपकी जो लहजे में तुरशी है इसको मिठास में तब्दील करें और सियासी मुखालिफत को दलील और सियासी मुखालिफत तक ही रहने दीजिए। उसको दुश्मनी में और किसी के बेइज्जती तक न ले जाए, वरना फिर आपका भी इससे बेइज्जती होगी जिस तरह हो रही है। बुशरा बेगम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे दौर में जब आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने जुल्फ बुहारी के जरिए बुशरा बीबी को मुलाकात का पैगाम भेजा जो सरासर झूठ है, जिसे बुशरा बीबी ने ठुकरा दिया। इसलिए आसिम मुनीर उन पर सख्तियां रखी हुई है। शुरू दिन से उनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम को सख्ती करके मुझे तोड़ा जा सके। बुशरा बीबी 5 कैरेट की अंगूठी, उसका सबसे पहले करप्शन का फाइल तैयार करने वाला यही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है। आप जितना भी झूठ बोलोगे सच का रास्ता और न सच को छुपा सकते हो। जिस जेल में मुझे रखा है वहाँ सैकड़ों पाकिस्तानियों के कातिल और दहशतगर्द भी मुझसे बेहतर हालत में रह रहे। एक फौजी रिजवान को शान शौकत से रखा हुआ है, लेकिन मुझ पर हर तरह की जुल्म जारी है। जो भी कर ले इस जुल्म के आगे मैं न पहले झुका था न अब झुकूंगा। अगर आपको इशारा करा दिया जिस तरह बुशरा बीबी ने आपको एक मज़ार पे सजदे कराए, सजदे करा के उनके पास पहुंच जाओगे। हम आपको सही तरह जानते हैं, बस फर्क यही है कि पीटीआई के फॉलोवर आपको नहीं जानते कि आप कितने मुनाफिक, एहसान फरामोश और बदजुबान हो। पंजाब में पिछले 2 साल से मरियम नवाज और मोहसिन नकवी के ज़ेर साए फसादियत का जो माहौल है उसने जमहूरियत और सियासी सरगर्मियों का खात्मा करे। तमाम मेंबर असम्बली की काफिले की सूरत में पंजाब आकर सियासी इज्तिमा करना खुश आइंद है। वो एक सियासी फिक्स मैच था।
वो एक सियासी मैच फिक्सिंग थी, इसलिए आपके बनाए हुए चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को नहीं बुलाया, पीटीआई के वर्करों को नहीं बुलाया, और जिस घर में गया मिर्जा अफरीदी उसको सेनेटर का टिकट दिलवा दिया। तो आपको ने खुद अपनी जुबान से कहा था कि इसको सेनेट का टिकट नहीं दे, क्योंकि 9 मई के बाद उन्होंने न सिर्फ इसको कंडेम किया था बल्कि तहरीक इंसाफ से किनारा कशी भी इख्तियार की थी। ए वर्करों, यही आप में और पैसे वालों में फ़र्क है, यही तहरीक इंसाफ है। ये तो कहता है कि एक दो नहीं एक पाकिस्तान, यही 2 पाकिस्तान की निशानियां हैं। तहरीक इंसाफ के वर्करों को सड़कों पे घसीटने के लिए, लड़ाने के लिए, मरवाने के लिए, और पैसों वालों को सेनेट के टिकट देने के लिए तहरीक इंसाफ बना है। उस वक्त मुझ समेत कई अफराद सख्तरीन जेल काट रहे हैं, इसलिए पार्टी का हर शख्स अपनी ज़ाती इख्तिलाफ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करे। मीडिया के सामने अपने ज़ाती और अंदरूनी मामलात को ज़ेर गुफ्तगू लाना किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। मेरी सख्ती से हिदायत है कि पार्टी में बड़े से बड़ा ओहदेदार या छोटे से छोटा रुकन या जिम्मेदार शख्स सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी भी और फॉर्म पर पार्टी के अंदरूनी मामलात या इख्तिलाफात का इजहार मत करे। अपनी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ एहतजाजी तहरीक पर रखे ताकि मुल्क इंसानी हुकूक की बहाली मुमकिन हो सके। अगर किसी जिम्मेदारी ने इस एहतजाजी तहरीक में हिस्सा नहीं लिया तो उसका फैसला मैं जेल से खुद करूँगा। जब आपका मेंबर पार्लियामेंट्स और वज़ीर आला पंजाब जा रहा था तो वहाँ आपकी सियासी पार्टी का कोई नुमाइंदा या सियासी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई कैबिनेट का कोई मेंबर वहाँ मौजूद था, बल्कि उसको मना किया कि आपने नहीं आना है। यही तो आपकी पार्टी की इंटरनल स्ट्रक्चर और यही आपका सियासी नज़रिया है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इंसानी हुकूक की बहाली, तो जब आप इंसानी हुकूक की बहाली की बात करते हैं, व्हेन यू वाज ए प्राइम मिनिस्टर, आपने इंसानी हुकूक की बहाली के बारे में आवाज़ उठाया या इंसानी हुकूक को अपने पाँव के नीचे रौंद डाला था? ये मकाफात अमल है जो आज आप उसका सामना कर रहे हैं। आखिर में लिखते हैं कि तमाम मेंबर पार्लियामेंट अहदेदारों को हिदायत कर मेरे ट्विटर पैगाम को खुद रीट्वीट भी करे और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करे ताकि ये पैगाम सबको पहुंच जाए। अच्छा, ये अब आपको इस ट्विटर के पीछे लगाता है, मगर वहाँ पे जब उन्होंने आयशा बानो, इरफान सलीम और खुर्रम शहजाद जैसे वर्करों को सेनेट का टिकट जो पहले अनाउंस किया था उससे वापस लेके यही 3 जो फिक्सिंग करवाया था उनको दिलवा दिए ताकि पार्टी के वर्करों इसके लिए आवाज़ न उठाए, उसकी तवज्जो उस तरफ न जाए और यहाँ हम खामोशी से मैच फिक्स करवा के अपने बंदे और भैया लोगों के बंदे को मुंतखब करा के सेनेटर बना सके। मैं तहरीक इंसाफ के वर्करों से इल्तिजा करता हूँ कि आप जो भी ऐसी कोई मामलात आते हैं तो उसकी तहकीक और रिसर्च कर लिया करें कि क्योंकि इमरान खान जो कहता है वो करता कुछ और है। ये हकीकी आज़ादी की बात करता है, इंसानी हुकूक की बहाली की बात करता है, मगर जब उसको खुद मौका मिलता है तो ये इंसानी हुकूक को अपने पाँव के नीचे रौंद डालता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर रहे। वस्सलाम, तेमस पाराम, अल्लाह पामान।